Very good morning to all of you. The topic for today's discussion is plan water relations. Okay, and plan water relation as the topic is it's the topic itself is very interesting because the water what has come in it. When we say the water, it really plays a very important role in whole this in whole earth system. That is, it will be a bonding type. Okay, water will be bonding the soil and the plant and the atmosphere. These three things: soil, plant and the atmosphere, and the water will be bonding these three. Okay, in the very in abbreviated form we say that it's a SPAC. SPAC. That means soil, plant, air continuum. That means a continuity of these water will be continually bonding these three: the soil, plant and the atmosphere. And then this water which is lost in the atmosphere will again come back to the soil system. Okay, so in the short it is given as a SPAC, SPAC. Okay, so this continuity should be there. It is a relationship which is been bound up by the water, and relationship of which component, that is the soil component, plant component and the atmospheric system, and again coming back from the atmosphere to the soil. Okay, so we know that that means from the soil and the plant, how they will be linked by the absorption of water which is present in the soil. The first point. Okay, the second point is that means from the soil to the plants and plants to the plant system in within the plant, that is the translocation of water, the second point. And the third point is the loss of water from the plant system to the atmosphere, that is the evapotranspiration. And again from the air through the clouds the rain will come, then again it will come back to the soil. That is what the water plays a role in this water cycle. Okay, and we all know that without this water, that is the roles of water in the plants, not only in the plants but all the living organisms, the role of water is magnificent. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? So this water's important is this water is the main medium which make every living organisms survive. Okay, so 90% of the plant body is water, and if there is no relationship, no bonding of this water among all these three components, that is the soil, plant and the atmosphere, then the plant would not function any physiological metabolisms. And if there is no physiological metabolism, definitely the plant won't die, won't be there. Plant will die. If plant dies, then you all know that we all are dependent on the plants for the food, for the oxygen we breathe, for everything. So if there is any barrier, any breakage in this relationship because of the water, the whole system, the earth itself will be down. And this is what the importance of water in the plants and also the on the earth. Now again the question comes: water, what forms of water? Does plant take any form of water? The answer is no. Hello, Okay. ma'am. Hello. The answer is yes. No. Okay. Hello. मैम हिंदी में भी थोड़ा हाँ हाँ ठीक है, I'll थोड़ा add. हिंदी में Okay. बोलिए. Okay, I'll try my best. ठीक है. Okay. Add करती हूँ कोशिश. Now वो forms of sorry forms of water में क्या है कि कौन कौन सा water, सारे types of water. Why water means water, लेकिन why I have come up the forms of water here? Because in the soil, the water which is present in the soil, जो पानी जो soil में available है, okay, that everything, every water is not present, made available to the plants. तो इसमें बहुत सारे types of waters है. That is the hygroscopic water I have given here, the capillary water, gravitational water, run of water, so many forms of water. Run of water जैसे बारिश हुआ तो पूरा बह गया, जो
फील्ड में टिकाऊ नहीं रहता है. ओके, द फर्स्ट. And again, तो टिकाऊ ही नहीं रहेंगे, then definitely the plant cannot use this form of water. So run of water crossed, no use and no available to the plant system. And the second one, let's take the hygroscopic water. What in the case of hygroscopic water is that these water are all bound, okay, bound to the soil surface, to the soil, that it is so intact, मतलब बहुत कड़क से वो बाउंड करके रहता है, तो प्लांट उसको ले नहीं पाता है. And that's why the hygroscopic water is also not available to the plants. Next is the gravitational water. Again, in the gravitational water also, what happened, all these water जितने भी वो पूरा नीचे खींच करके with the force of the gravity वो सारे नीचे चला जाता है, ground इतने deep ground level में चला जाता है कि plants cannot utilize it. Okay, that's why gravitational water is also not usable for the plant system. तो this ये capillary water फिर क्या हुआ? Capillary water is the only form of water which is able to the plant system. तो इसमें कैसे ये हुआ? We know that the root will be getting into the soil, and that's how the water will be taken up by the plants. Okay, so when this in the capillary form of water, soil particles के बीचों बीच में सारे गैप से loosely packed है, और उसी के बीच, उसी के गैप्स में ही सारे soil particle ऐसे ऐसे, और उसी के बीच बीच में ये सारे पानी प्रेजेंट रहता है. तो इसमें क्या होता है कि when the plants get into it, इसका roots आराम से इस गैप में घुस करके पानी ले सकता है. That's why the capillary form of water is the only form of water which is used by the plant system for whole metabolic process. जितना भी जो water cycle के बारे में हम लोग ने अभी discuss किया, this is all happen because of the capillary water. Okay, so when the question comes which form of water is available to the plants, it's the capillary form of water. Okay, now next, absorption of water by the plants. अभी समझ में आ गया कि which form of water का क्या importance है and how it is going to help in the plant system and also to the whole living organisms on the earth. And the second thing is that ये पानी plants में कैसे जाएंगे. Okay, that comes the absorption. So when we say the absorption, then इसमें जो है कि is all the plant part, जितने भी plant parts वो absorb करता है. The answer हाँ, absorb करता है, ठीक है, लेकिन the quantity is so less, so negligible. जैसे कि leaves भी moisture trap करना, सारे roots के parts भी, fruits भी, सब moisture लेते हैं, in the form water लेते हैं, in the form of जो moisture से vapor के form पे. पर क्या कहते हैं कि ये सारे जो है it is so negligible, so minute that especially for the absorption of water, the plant's part which mainly involved is the root part. So we all know that root absorbs the water because root जो है वो underground रहता है and which is in the direct contact with the soil. तो ये इसमें roots में ज़्यादा potential होता है कि पानी को ऊपर खींचे अपने, ओके, सारे अपने प्रोसेसर है वो कंटिन्यू करने के लिए. सो नाउ एक चीज इसमें ये कहते हैं कि जो रूट्स पार्ट्स में भी इज ऑल द रूट पार्ट्स इन्वॉल्व. इसमें ये आने के लिए रूट्स में यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर्स दिखाया है रूट्स का, इफ यू कैन सी इट. ये है मेरिस्टेमेटिक जोन. मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब जहाँ पे नया छोटे छोटे से नया यंग टिश्यू निकलता है, मतलब बनने के लिए जो निकलता है, ओके, ये है. और इसी को कवर्ड करते, शील्ड करते हैं ताकि इसको नया है, टूटने का, फटने का, मरने का बहुत चांसेस है. तो व्हाट हैपन कि ये रूट कैप जो है इसको एक बचाते हैं, यहाँ पे कवर्ड अप बाय द रूट कैप. देन फिर उसके बाद जो है एक रीजन आता है, दैट इज द इलोंगेशन रीजन वेयर द सेल डिवीजन इज वेरी हाई. फिर उसके ऊपर थिक चला जाता है द रूट हेयर्स रीजन. और यही एक रूट हेयर्स रीजन है जो मेनली स्पेसिफिकली विच are involved in the absorption of water. Okay, why? The answer is why. ये सारे भी question is why. ये सारे भी तो roots के parts है, but ये root hairs mainly क्यों
पानी को एब्जॉर्व करता है? The answer for that is the region of absorption. The root here is that because of the presence of pactic substance. Okay, ये pactic substance जो है it is highly hydrophilic, मतलब water loving. Hydrophilic का मतलब पानी को बहुत पसंद करने वाला. Okay, so because of the presence of these pactic substances on the root surfaces, on the surfaces of this root hair, it has more potential to draw water from the soil. So from among all the parts of the roots, root hairs plays a very specific in absorption of water. Okay, और बहुत सारे कुछ है, ये तो overall for the plants है जो vastly for the plant, general plants root hair से करते हैं, लेकिन in case of orchids क्या करता है? Orchid जो है वो उसके रूट्स डिस्टिंक्टिव रूट्स नहीं है, तो वो वैलामिन से विद द हेल्प ऑफ वैलामिन, ओके, वो सारे जो एयर में जो एयर मॉइस्चर, दैट इज द ह्यूमिडिटी हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो एयर मॉइस्चर को ट्रैप करके वो अपना पानी का मात्रा जो है अपना आई मीन take absorb them and use it for its own purpose. And the same way other plants like in the evergreen trees, I have given some of the examples here like pines हुआ, जो कौन हम लोग नहीं होता है कि क्रिसमस ट्री वगैरह, ये विलोज हुआ जो विचेरिया हम लोग कहते हैं, उसका पूरा ड्रूपिंग लीव्स रहता है ऐसा पूरा. तो ये सब में क्या होता है कि इस सब में जो है रूट हेयर्स के अलावा वो डायरेक्टली वो नहीं ये ना करके देयर छोटे 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 रूट्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें. तो दिस शॉर्ट रूट्स in association of all the microorganisms, okay, जो symbiotic nature में रह करके they help in absorption of water. So now this third point भी समझ में आगे होगा I hope. First is water form, फिर absorption होना है तो absorption कौन से part of the plants is involving? Mainly the root parts, and again more specifically root parts may be the root hairs. The answer इसके root hairs में क्यों? Because of the presence of pactic substances. Pactic substances present होने से क्या हुआ? ये pactic substances जो है बहुत water को पसंद करने वाला एक substance है, okay, which is highly hydrophilic in nature, and that's why it helps in drawing the water, and that's how the water gets absorbed. Now फिर यह समझ में आ गया root hairs है वो directly involve हो रहा है. Now the second question आता है, तो ये पानी कैसे घुसे अंदर? Okay, now there are so many ways. We know that we have to, suppose if you are planning to give one entrance exam, suppose for a doctor, for an agriculture, to come up to our agriculture also you have prepared a lot and all. उसके लिए first entrance देना पड़ता है. Then after entrance exams, yes, which university, which college, then again you have to define. Like that here हम लोग को समझ में आ गया the root part is involving, and again फिर water उसमें कैसे घुसता है. Okay, इसमें जो आता है we know that the cell wall, सब टिश्यू सब सेल से बना हुआ है कि नहीं? तो ये सारे सेल जो है सेल वॉल, and we know that cell wall is fully permeable, पूरा मेन गेट की तरह है, ठीक है. When you get in for an exam to give it to sit in an exam, तो क्या होता है कि जो गेट जो है वो मेन गेट पूरा खुला रहता है, but you haven't stopped to get into the specific classrooms. तो ठीक उसी तरह है. तो मेन गेट तो पूरा खुल गया, which is a cell wall you can imagine of, okay, पूरा खुल गया, it's open to everyone. Any substances, चाहे वो water हो, चाहे वो other mineral ions हो, they will all get into. इसका मतलब ये है here comes the role of membrane and its permeability to the substances which is getting in from the soil to the roots. Okay, समझ में आया है ना? So it is like this. तो इसमें permeability में बहुत सारे forms of permeability रहता है. One is impermeable. Fully permeable कौन है? Fully permeable, the cell wall. Cell wall is fully permeable, is not stopping any of the substances to get into. Okay, the now next is impermeable. एक होता है कि वो कब एकदम जो है वो कुछ भी अलाउड नहीं करेंगे, वो पूरा जो है maybe because of the presence of wet substances and all, they are not letting anything to get in. That is the impermeable. Now another form of permeability is the semi-permeable. This is
a very common one. And when we talk about anything about absorption, yeah, diffusions, yeah, translocation, we have talked about semi permeability, and very often we have come across the semi permeable. So what form of permeability is this? Semi permeable जैसे कि plasma membranes वगैरह में सेमी परमिएबल इसको कहते हैं कि विच अलाउज द वाटर टू गेट इन. ये वाइट वाइट सब्सटेंस जो है वो वाटर है, एंड अदर्स अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर मिनरल्स, आयंस. ओके, तो इसमें जो ये रहता है कि इट अलाउज द वाटर टू पास इन, नॉट लेटिंग अदर्स. जैसे कि तुम लोग जो है गेट से घुस के आ गए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम वेयर योर सिटिंग रोल नंबर इज बेस्ट. तो उसमें क्या होगा कि इफ योर रोल नंबर इज नॉट देयर, यू आर नॉट अलाउड. फॉर दोज हु हैव अ रोल नंबर देयर, दे विल बी अलाउड टू गेट इनटू द क्लास. द सेम थिंग हियर इन द सेमी परमिएबिलिटी. हियर द ओनली अलाउइंग द वाटर टू गेट इनटू एंड रेस्ट to stop before the, I mean outside the membrane. Okay, so this is what the semi-permeable is. Besides this, another एक और permeability है, that is what we call a differentially permeable. Okay, ये differentially permeable, इसको भी हम लोग कहते हैं कि selectively permeable. Selective, very much choosy in nature. Okay, बहुत choosy होते हैं ये लोग. पानी तो घुसेंगे ही घुसेंगे, इसके अलावा इफ मतलब बायस भी कह सकते हो इसमें. दे आर सो सिलेक्टिव. यस, ए कैन गेट इन, बी कैन गेट इन, बट सी इज नॉट अलाउड, डी इज नॉट अलाउड, लाइक दैट. ओके, सो दिस फॉर्म ऑफ परमिएबिलिटी इज नॉन एज द selectively permeable or differentially permeable. That means the water which has to get in to the root cell, okay, from the soil, has to cross all this: permeability, impermeability, semi-permeability, selectively permeability, all this through this permeable, through these walls. ये सारे gates cross करके ही पानी जो है from the soil, it will get into the root system. Okay, now the next. Now फिर ये पानी सारे जो है वो कैसे, ये इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? The process of the process of getting in this water to the root system is because of the two processes. One is the diffusion process and another one is the osmosis process. Okay, so what is diffusion and what is osmosis? In a very simple way, I'm not directly going to the definition. Just to make you understand, I'll let you know diffusion means फैलाना, that is spreading out in a very simple words. और इसका जो है तीन तरीका होता है. तीन तरीका में, तीन फॉर्म्स में ये स्प्रेड, ये सॉलिड होता है, सॉलिड स्प्रेडिंग, लिक्विड एंड द गैस में भी. ओके, सो इट हैपेंस इन द लिक्विड, इन द गैस, इन दी सॉलिड. ओके, तो ये जो है हमेशा जो एक और चीज जो है, जब हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे, देन द मूवमेंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. माइंड दैट, हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे. बट समटाइम्स अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुएट भी जाता है व्हेन देयर इज मस्ट नीडेड. सपोज एक सेल ए रहा, एक सेल बी रहा, इसमें सेल ए में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एंड द सेल बी में कॉन्सेंट्रेशन इज लो, देन द मूवमेंट विल बी फ्रॉम हियर टू दिस, दैट इज फ्रॉम ए टू बी. ओके, बट कभी कभी होता है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका शॉर्ट है, बट इफ द मूवमेंट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट फ्रॉम द बी to the A, यहाँ से यहाँ जाने का, and this against the concentration gradient जो जाता है, for this we need an energy like ATP with the, मतलब एनर्जी स्पेंड करके ही ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाता है. और ये कब जाता है? व्हेन देयर इज मच रिक्वायरमेंट एंड नीड. जब नॉर्मल प्रोसेस में जो होता है, दैट इज इट ऑलवेज गोज, माइंड दैट इट ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, एंड दिस movement, it may be from the liquid to liquid, gas, then again solid to liquid. इसके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दिया. मे बी दी पोटासियम परमैंगनेट हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ, ये कुछ भी ले लो,
उसको पानी में घोल करके वी टेक अ बिकर फुल ऑफ वाटर, उसमें फ्यू ड्रॉप्स या इंक भी ले लो, आजकल खैर कोई इतना लिक्विड इंक यूज नहीं करते, एवरीवन इज यूजिंग दिस बॉल पेन एंड ऑल, बट एनी हाउ this when we drop few drops of this coloring liquid to the substance, that is to the water, after few minutes you will see that all the water will that color will be sprayed in, okay, sprayed out in the water, and the water color will be changed to blue or red, pink, and whatever the based on whatever the color we use it. This is what the liquid diffusion means. But now when we talk about the solid diffusion, the solid diffusion में क्या होता है, चीनी को पानी में घोल दो या सॉल्ट को पानी में घोल दो, that is what the solid to liquid diffusion means. So after some time the plain water जिसका tasteless है, if we add 3 spoon या 2 spoon of sugar, and after some time we stir it, and after a few minutes we will be seeing that all the solid molecules जो sugar है, जो हमारा salt है, वो सारे मिल जाएंगे पानी में, and when we taste the water taste changes. If it is salt, then it is salty. If it is sugar, then it will be sweet. So this is what the solid to liquid diffusion means. Now, as for the gas का क्या हुआ? Here I have given an example here. The perfume स्प्रे हम लोग यूज करते हैं, रूम स्प्रेयर यूज करते हैं, तो ये सब में जो है, इफ आई स्प्रे इन वन रूम, आफ्टर फ्यू मिनट्स इन द सेकेंड रूम ऑल्सो, इन द थर्ड रूम ऑल्सो, इट ऑल गेट कम्स आफ्टर सम टाइम वी कुड स्मेल दैट गुड fragrance coming from the other room. That is because of the spreading of this gas from that on that particular medium, and coming out and sharing to another room, then again to the next room. This is what the diffusion is. Okay, I hope you understand. And now the next is the osmosis. Osmosis is very interesting again. Osmosis is nothing different from the diffusion. This is the diffusion itself. Okay, osmosis, इसको ध्यान से सुनो, osmosis जो है वो diffusion के एक फॉर्म है, लेकिन why we are taking this osmosis in a separate term, इसको निकाल करके why we are studying this, because in the osmosis we talk only about the movement of liquid substance, that is the water substance. Okay, water molecule, जो water molecule जो move करते हैं, उस water movement को ही हम लोग उस पे we see here only the movement of water. चाहे उसमें जितना हम लोग पानी में जितना salt घोल ले या sugar घोल ले या कोई भी color घोल, जितना भी हो, only the thing which is taken care of in the osmosis is the movement of water. Okay, सिर्फ, और वो movement वो कहाँ होगा, जो अभी हमने कहा कि cell A and cell B, इसमें cell A में बहुत सारा water है, इसमें presence, चाहे वो solution के form में क्यों ना हो. Okay, जैसे 2 ग्लास लिया, एक 2 ग्लास को मैंने कुछ एक चीज से जोड़ दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, या ग्लास को एक बड़ा सा ग्लास लेके इसके बीचों बीच में जो हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बांटा 2 पार्ट में, देन अगेन एक साइड में हमने जिसमें एक घोल जो से होता है ना, कि जिसमें मैंने एक ही स्पून शुगर डाला हो, उसमें एक साइड में रखा, और दूसरे में जो है मैंने 3 चम्मच शुगर डाले, उसको रखा. Okay, that means where I put it 3 spoons of sugar on the other side and only 1 spoon of sugar on the opposite side. Then what do you think? The movement जो है water का movement है osmosis में. Mind that osmosis में जो है हम लोग कितना concentration of solute जो sugar घोला है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे. What we are going to see is that how much the concentration of water is. तो A में concentration water का concentration ज्यादा होगा, जिसमें solute concentration कम है, एक ही स्पून घोला है, तो पानी A में ज्यादा है, then the movement of water will be from A to the B. ओके, वो सेमी परमिएबल, इसीलिए हमने कहा था सेमी परमिएबल जो है, अभी प्रीवियस स्लाइड में वी डिस्कस इट, सेमी परमिएबल अलाउज ओनली दी वाटर बट नो अदर सोल्यूट्स. ओके, तो इसी के चलते जो है वाटर विल मूव फ्रॉम द ए टू द बी साइड. ओके, हियर इट इज. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन,
या और दूसरे साइड में जो है वो डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशंस, मतलब जिसमें कम शुगर घोला है, तो जिसमें जहां से कम घोला है वहां से चले जाएंगे जहां पे ज्यादा शुगर घोला है। दैट मीन्स कम वाटर के जगह पे ज्यादा वाले जगह से ही कम वाले पे चले जाएंगे। ओके, दिस इज हाउ द ऑस्मोसिस वर्क। जैसे कि आरओ में, ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, जो आरओ जो हम लोग यहाँ घर पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें ऑस्मोसिस नहीं होता है, उसमें जो है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। यस, द वाटर मूवमेंट इज देयर। उसमें क्या करता है कि उसमें एक फोर्स डालते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को ले लो, जहां पे मैंने 4 या 3 शुगर डाले थे, उस साइड में हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया एंड अलाउ टू मूव द वाटर बैक। ओके, तो वाटर तो ऐसे जहां से शुगर कम है वहां से जाना चाहिए था, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, वो उल्टा कर देते हैं। वाटर मूवमेंट जो है, इट मेक द वाटर टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय अप्लाइंग अ स्पेशल एंड एक्सटर्नल फोर्स, एक प्रेशर उसमें डाल करके, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड दिस। सो डिफ्यूजन मतलब स्प्रेडिंग आउट, और ऑस्मोसिस मतलब pushing of water from the higher concentration to the lower concentration. Okay, so this is the osmosis now. फिर टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में बहुत सारे डिफ्यूजन है। हमने कहा कि डिफ्यूजन के चलते या ऑस्मोसिस के चलते जो है पानी जो है वो रूट के सेल्स में घुस रहा है। रूट के सेल्स में घुस रहा है मतलब सेल वॉल दे हैव टू क्रॉस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे हैव टू क्रॉस। ये सारे जो है डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत सारे इसमें घुसने का जो है, इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन्स होता है। सो अलग अलग टाइप ऑफ डिफ्यूजन्स में एक आता है द सिंपल डिफ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में सीधा घुसे जाना, जैसे कि ये वाला, उसमें कुछ रोक टोक नहीं, आराम से। मेम्ब्रेन क्या से बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर्स, वी ऑल नो दैट। ओके, उसमें सारे लिपिड, डबल लिपिड बाइलेयर्स, सैंडविच हम लोग कहते हैं ना, बीच में सारे स्टफ रहते हैं एंड 2 ब्रेड से ऊपर से और एक नीचे से वो आई मीन झप के रहता है। ठीक है, तो इसको जो है सैंडविच हम लोग क्या कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर कहते हैं इसको, मेम्ब्रेन को, है ना। बाइलेयर इसलिए क्योंकि ऊपर में भी नीचे में भी बाइलेयर, बाय मतलब 2। तो सिंपल डिफ्यूजन में जो है ये सारे लेयर्स में जो ऐसे है, सिंपल डिफ्यूजन में जो जिसे जैसे जगह गैप है उसी में से आराम से घुसते, दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड। तो ये सारे पानी जो इस तरह इसके गैप में घुस करके आराम से अंदर चले जाता है। दैट इज व्हाट द सिंपल टाइप ऑफ डिफ्यूजन मीन्स। ओके, नाउ सिंपल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ये रहा। दूसरा टाइप फैसिलिटेटेड, टर्म्स ही बताता है। फैसिलिटेटेड मतलब किसी को सपोर्ट देना। ओके, फैसिलिटेटेड का मतलब सपोर्टिव। तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे दूसरा फॉर्म ऑफ जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हुए जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हुए रहते हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, एक चैनल में चला आएगा उन लोग। ये एक प्रोटीन चैनल है। ठीक है, इसमें जो है सारे जो है पानी जो है वो ना इधर मेनली डायरेक्ट ना घुस करके इस चैनल में आ जाएंगे। ओके, through this channel, that is what the facilitated diffusion means। और इस चैनल्स का एक और एग्जांपल्स भी है एक्वापोरिन, which is, ये एक्वापोरिन जो है वो प्रोटीन सब्सटेंसेस से जो एम्बेडेड है लिपिड बाइलेयर में, ऐसे बना हुआ प्रेजेंट होल है। ठीक है, एक पोर है, वी कैन नॉट एग्जैक्टली द होल, इट्स अ पोर। तो व्हाट हैपन थ्रू दिस पोर, थ्रू दिस एक्वापोरिन जो है पूरा सारे पानी को आता है। Okay, so that means simple diffusion means simply getting into the membrane from the gaps. Okay, and facilitated diffusion में क्या होता है, getting into water with the help of other protein molecules which is present embedded on the plasma membrane. Okay, वो एक चैनल की तरह, मतलब ऐसे टनल की तरह खुले रहते हैं मेम्ब्रेन के बीच में ऐसा, और बाकी सारे इधर मेम्ब्रेन है, इधर मेम्ब्रेन, ऐसा चैनल बना रहता है। इसी चैनल में ही जो है सारे वाटर घुस के आता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड नाउ द टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन?
सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब चैनल के थ्रू, एक्वापोरिन के थ्रू वो आएगा, नॉट डायरेक्टली थ्रू दी मेम्ब्रेन। जो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू आता है फ्रॉम द गैप्स, दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में एक एंडोस्मोसिस आएगा, एक एग्जॉस्मोसिस। ऑस्मोसिस में एक पानी को लेने वाला, एक पानी को देने वाला। समझ में आ गया कि कोई भी ये ए चीज है, जहां पे मैंने एक ग्रेप्स का एग्जांपल दिया है, रेजिन, किशमिश हम लोग जो बोलते हैं, दैट इज अ ड्राइड ग्रेप्स है ना, वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर उसको हम लोग किशमिश को पानी में soak दो, we soak this one for few minutes and after few minutes what happen, वो सारे फूल जाता है कि नहीं? and वो क्यों फूलता है? Because हम पानी में रखा, पानी में सोखा, that means the water is getting into the dried substances. dried मतलब वो पूरा शुगर कॉन्सेंट्रेटेड है अंदर, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है रेजिन में, तो पानी एकदम नहीं है। जब हम पानी दे रहे तो पानी जो हमने बॉल में लिया, ग्लास में लिया, जहां पे हम सोके हैं, तो उसे द वाटर विल गेट इनटू द ड्राइड एंड इट विल मेक इट swollen. वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है। दिस इज व्हाट द एंडोस्मोसिस मीन्स, getting in of water into the cell. Understand now? This is endosmosis. Now exosmosis में क्या हुआ? किशमिश वगैरह कैसे बनाता है? We are not letting only the sun dry ना करके भी हम लोग क्या करते हैं कि concentrated salt या sugar हम लोग इसमें ले लेते हैं, तो क्या होगा कि पानी जितना भी जो ग्रेप्स के अंदर बचा है ना, वो सारे निकालेंगे। बिकॉज इन द ऑस्मोसिस हम लोग ने क्या कहा? मूवमेंट ऑफ वाटर, जहां पे पानी का मात्रा ज्यादा होगा उससे कम पानी का मात्रा ज्यादा होगा उसी पे जाएगा। दैट इज फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये ग्रेप एकदम फ्रेश है, तो हम इसको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो व्हाट एवर द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द ग्रेप्स दैट विल कम आउट एंड कम आउट टू द सॉल्यूशन, एंड that's how जो सारे पानी निकल जाएंगे तो वो सिकुड़ जाता है। सो वन इज endosmosis, one is the exosmosis. These are the two forms of osmosis. Now ये सारे osmosis जो है हम लोग ये कैसे हो रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन दी सोल्यूशन टाइप। ये सोल्यूशन क्या हुआ? एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन और एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने लिखा है एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, ये सारे सोल्यूशन के बेसिस में ही है जो एग्जॉस्मोसिस, एंडोस्मोसिस हो रहा है। ओके, सो नाउ ये सोल्यूशन है क्या? हाइपरटोनिक मतलब इस तरह याद करो, हाइपर मतलब बहुत सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ओके, पानी कम, हाइपर टेंशन उसी टाइप का सोचो, बहुत ज्यादा टेंशन मतलब ज्यादा प्रेशर हियर, तो ज्यादा प्रेशर मतलब यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कोई भी सोल्यूशन में इफ वी से द सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, देन देयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मैक्सिमम एंड वाटर का मात्रा कम होगा। ओके, एंड आइसोटोनिक में क्या होगा? ना उसमें ज्यादा ना उसमें कम, कोई भी यहाँ पे ये बाहर है ये अंदर है, तो यहाँ का पानी का मात्रा और बाहर के पानी का मात्रा इट शुड बी सेम। दैट इज व्हाट द आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स। ओके, नाउ हाइपोटोनिक मतलब जहां पे अगर ये सेल, हाइपोटोनिक मतलब ये इस ग्रेप्स को ले लो, इसके अंदर जो है वो हाइपोटोनिक मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसमें वाटर का मात्रा ज्यादा हो, दैट इज दी hypotonic solutions. Okay, so you understood now the type of osmosis, that is exosmosis, going out of water from the cell, endosmosis, getting water into the cell from outside source, and this all exosmosis and endosmosis are depend on the three types of solution form, that is the hypertonic solution means high solute concentration, isotonic same concentration from between inside and the outside, and the third one is the hypotonic where the concentration of water is maximum.
ओके नाउ इसके बाद हम लोग को अभी समझ में आ गया डिफ्यूजन के चलते चलना है, ऑस्मोसिस के चलते चलना है. नाउ अगेन हियर कम्स अप द प्रेशर. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स रहता है. उस प्रेशर को क्या 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 कहते हैं. ओके सो नाउ द फर्स्ट प्रेशर आई एम पिकिंग अप हियर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है. दिस इज अ प्रेशर, मतलब प्रेशर है, कोई भी मतलब उसको टेंशन देने वाले होंगे. ये प्रेशर वही प्रेशर है जो कोई भी सॉल्यूशन में अगर हम लोग 1 स्पून शुगर लिया ग्लास फुल ऑफ वाटर में, तो उसमें जो है एक सोल्यूट का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ओके, विच विल स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ वाटर. ओके ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ वाटर है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोसिस को होने नहीं देंगे. दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर को वो ब्लॉक कर देंगे. हाउ, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. और ये कैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, बाय एडिंग मोर एंड मोर solute concentration. Okay, so more the solute concentration, more will be the osmotic pressure. अंडरस्टैंड. मतलब एक ग्लास में एक चम्मच लिया है शुगर का, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज मान लो कि B है, 1 है. 2 चम्मच लिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर 2 हो जाएगा. 3 चम्मच लिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर 3 हो जाएगा. मतलब जितना भी ऐड करते जाएंगे हम, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा. मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया मतलब वाटर मूवमेंट विल बी स्लो डाउन. ओके ये ऑपोजिट है. वाटर मूवमेंट जितना तेज होनी चाहिए, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा. जितना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर मूवमेंट कम होता जाएगा. सो I think I'm able to explain it I'm trying my best to explain in a simple way. I hope you all are getting it. Osmotic pressure matlab, again I'm repeating, the pressure created by the solute concentration. And the first point, because of the solute concentration, the pressure is created. And because of the pressure, the second point is that not letting the water to pass through the semi-permeable membrane. Okay, so this is what the osmotic pressure means. और यहाँ पे भी आप देख लो, ये लो, इसमें लिखा है लो ऑस्मोटिक प्रेशर. लो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जिसमें सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन कम है. हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जा रहा है जिसमें जो है सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. ओके सो हियर more the just one thing to remember from this slide is that osmotic pressure means pressure created by the solute concentration. The second point, because of this pressure the water flow will be slowed down. It is opposite. Water movement is high, then osmotic pressure should be low. Osmotic pressure is high, then water movement should be low. Okay, this is to be understood. Now next is hydrostatic pressure. एक ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, आई होपफुली. नाउ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर. या एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर क्रिएटेड बाय द वाटर, that is called a hydrostatic pressure. So it says that hydrostatic pressure are nothing, the pressure exerted by water at any medium due to some force. ओके ये प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में अलग अलग प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर आल बी कमिंग अप. ये सारे कोई भी जैसे भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब वाटर के चलते प्रेशर क्रिएट करना सेल में. दैट इज व्हाट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज. इसमें 3 फॉर्म्स अगेन है. वन द टर्गर प्रेशर, हम लोग सुनते रहते हैं. टर्गर प्रेशर कहाँ पे सुने होंगे, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल ओपनिंग में सुने होंगे. सो एक रहा टर्गर प्रेशर, नेक्स्ट इज वॉल प्रेशर, नेक्स्ट इज रूट प्रेशर. ये तीनों जो है भले हम लोग वी आर गिविंग 3 डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट टर्म्स पे हम लोग इसको जान रहे हैं, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, रूट प्रेशर, लेकिन ये सारे प्रेशर जो है जस्ट प्रेशर क्रिएटेड बाय द वाटर. दैट्स व्हाई ये तीनों जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर में आता है. ये नाम टर्गर प्रेशर कहते क्या है. जैसे कि यहाँ पे एक सेल लिया, दिस इज अ सेल सपोज. इस सेल के अंदर ये बाहर है, ये इनसाइड है. ओके इसमें टर्गर प्रेशर कब बढ़ेगा, जिसमें टर्जिट होगा. ओके
सेल के अंदर बहुत पानी का मात्रा जब बढ़ेगा तो टर्जिडिटी होगा। टर्जिडिटी मतलब बिकॉज ऑफ द वाटर वो फूल जाना। अगर हम बलून में सपोज फॉर एग्जाम्पल बलून में जो है हम पानी ऐड करते जाए फोर्सफुली पूरा भरते जाए, वो बलून फट जाएगा। ओके, तो क्या कहते हैं कि जो बलून एज ए सिक्योर के जो रह रहा था पहले, if we add water in it then it becomes bubbles, that is turgid, balloon become turgid now, that is, और उस turgidity के चलते inside the balloon there creates a pressure, and that form of pressure is called a turgor pressure. Okay, पानी के चलते inside the cell जो pressure create होता है that is turgor pressure. ओके, नाउ ये ऐसे सेल भी जो है प्रेशर बढ़ते बढ़ते जाए, सेल फट नहीं जाएगा हमारा, बट ऐसा कभी सेल क्यों नहीं फटा है? बिकॉज ऑफ द वॉल प्रेशर। हमने कहा सेल के इनसाइड में जो है दिस इज द इनर साइड, इसमें पानी बढ़ गया, टर्जिट हो गया तो ये फूल गया, बिकॉज ऑफ दिस टर्जिडिटी देयर इज टर्गर प्रेशर। तो क्या करते हैं दूसरे साइड में सेल वॉल के तरफ से, इस साइड से, the more the turgor pressure increase, another pressure increase on the wall of the cell. cell wall में मतलब एक आदमी इधर से कोई पुश कर रहा है तो कोई आदमी सेम इक्वल पावर का, ओके, पोटेंशियल का उसको ऐसा प्रेस कर रहे हैं, मीन्स नॉट लेटिंग द सेल टू बस्ट इट। अंडरस्टैंड? इधर टर्गर प्रेशर आ रहा है तो इधर वॉल प्रेशर विल बी कमिंग। अंडरस्टैंड नाउ? वॉल प्रेशर मतलब वो ऑपोजिट टू द टर्गर प्रेशर, ताकि सेल जो है वो इंटैक्ट रहे, वो बस्ट ना हो, दैट इज द वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर इज द प्रेशर created exerted by the water against the turgor pressure. Okay, that is what the wall pressure is. Now फिर तीसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो क्या है? दैट इज द रूट प्रेशर। ऑडिबल मैम। हेलो हेलो, कोई कुछ कह रहे थे? एनी क्वेश्चन? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अभी ठीक है? इट्स कमिंग नाउ? आवाज नहीं आ रही थी मैम। या मे बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क Yes, ma'am. कनेक्शंस एंड ऑल। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। आई रिपीट अगेन, जो थोड़ा मिस्ड हो गया हो तो आई रिपीट अगेन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में मतलब कोई भी वाटर के चलते जो प्रेशर क्रिएट होता है सेल में, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक टर्गर प्रेशर, एक वॉल प्रेशर एंड एक रूट प्रेशर। ओके, टर्गर प्रेशर कब होता है? जो सेल के अंदर में, इनसाइड अ सेल, जब वाटर का मात्रा बढ़ता है, टर्जिडिटी जो है। यस राम? हेलो? ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही थी मैम। अभी ठीक है? यस मैम, अभी ठीक। थोड़ा उतर चढ़ाव तो होता ही है इंटरनेट के चलते। दिस इज द वास्ट डिफरेंस बिटवीन दी जो ब्लैक चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड का क्लास और इस तरह ऑनलाइन का क्लास। एनीवे, लेट्स होप फॉर द गुड थिंग्स एंड लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो जब टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो दूसरे साइड में एक और प्रेशर क्रिएट होता है अगेंस्ट, ऑपोजिट साइड में टर्गर प्रेशर के, दैट इज व्हाट द वॉल प्रेशर इज। वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर इसलिए बनता है कि जब 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 टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तब तक वॉल प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो बर्स्ट ना हो, बस इंटैक्ट रहे। ठीक है? एंड द थर्ड वन इज अ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कब क्रिएट होता है? जब ट्रांसपिरेशन के चलते रूट में पानी को जो लेने का जो प्रेशर बढ़ता है ना, एट द टाइम ओनली द जाइलम सेल्स में, रूट है तो डेफिनेटली द पानी का बात करते हो द जाइलम टिश्यू, जाइलम सेल में जो क्या होता है, जो प्रेशर बढ़ता है बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एंड मोर वाटर, दैट प्रेशर इज व्हाट वी कॉल अ रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर के चलते जो है इसमें जो है अपटेक ऑफ वाटर हो जाता है, दैट मीन्स फ्रॉम द रूट टू द सिस्टम, प्लांट सिस्टम एंड देन टू द ट्रांसपिरेशन तक के लिए जो है वो पूरा ओवरफ्लो जो है वो कंटिन्यूटी रखने के लिए ये रूट प्रेशर जो है वो हेल्प होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट इज अभी हमने जो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक की बात की थी द सॉल्यूशन फॉर्म में।
इसमें जो है हमने लिखा है द प्लांट सेल एट डिफरेंट वाटर स्टेटस इन ऑस्मोसिस। अगर एक सेल को हमने जिसमें रखा है जो पूरा इसमें जो वाटर जो है अंदर घुस रहा है, तो डेफिनेटली ये सेल जो है यहाँ पे टर्जिट हो रहा है। ओके, दिस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन, दिस इज अ पिक्टोरियल फॉर्म। और दूसरे फॉर्म में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है, वो एकदम इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, ना बाहर भी ना अंदर भी, वे सेम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हाट द आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज। नाउ ये एग्जॉस्मोसिस होने लगता है, जैसे कि रेजिन में, रेजिन तो पूरा, रेजिन का जो है पूरा ड्राई होने से पहले क्या होता है कि एक चीज एग्जॉस्मोसिस में दो चीज आ गया यहाँ पे, एक फ्लैसिड, हम लोग नहीं कहते कि दिस व्हेन द स्टोमेटा सेल इज फ्लैसिड तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, जब गार्ड सेल जो टर्जिट होता है तो स्टोमेटा खुलता है। You might have heard it before also, if not then okay, doesn't matter. In the future classes we will be discussing all about. तो फ्लैसिड में क्या होता है, फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइसिस दोनों ये एक्सॉस्मोसिस है, कमिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू दी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइज का बेसिक डिफरेंस ये है, फ्लैसिड मतलब the initial steps of becoming plasmolyzed, plasmolyze का एक इनिशियल स्टेप है। फ्लैसिड होना मतलब इसमें द सेल स्टार्टेड स्क्वीजिंग लाइक दिस। ओके, तो इसमें जो सेल पूरा यहाँ पे जो दिस ब्लैक वन इज द वॉल, दिस इज द मेम्ब्रेन, तो ये सेल पूरा इधर देखो पूरा भरा हुआ है, ये पूरा ना भर के सेल जो है वो बीच में जो वैक्यूल जो है वो यहाँ पे ऐसे सिकुड़ने लगा है, सेल वॉल, सेल के अंदर में जो वैक्यूल्स है वो ऐसे सिकुड़ने लगा है जहां पे पानी स्टोर होता है। तो दिस इज द फर्स्ट इनिशियल स्टेप ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, और उसमें भी पूरा पानी निकलते जाएंगे। इफ द सॉल्यूशन आउटसाइड इज हाइपरटोनिक, बहुत ज्यादा सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे तो पानी और निकलता जाएगा, लास्ट में जो है वो सेल जो है वो ऐसा इस फॉर्म में छोड़ देंगे, पूरा जो वॉल, सेल वॉल से जो है पूरा सब निकल करके जो बीचों बीच में एकदम एक डॉट टाइप का रह गया, पूरा सिकुड़ के, दैट इज व्हाट प्लाज्मोलाइज मीन्स। ओके, फ्लैसिड में शुरू होना, सिकुड़ने का जो है वो इनिशियल स्टेज है, और एकदम इस तरह सिकुड़ जाना, दैट इज दी प्लाज्मोलाइज, एंड दिस बोथ हैपन बिकॉज ऑफ द एक्सॉस्मोसिस प्रोसेस, दैट मीन्स coming out of water from the cell to the outside solution. Okay, so this is what about now. एक और इसमें ये आता है to come up to all this, ये why we are this, you may ask मैम इतना water absorption की बात कर रहे हैं, ये सारे कहाँ से pressure, ये सारे कहाँ से solutions की बात कर रहे हैं। Without this, these all different forms of solutions, these all different forms of pressures, because of these only the water moves from one cell to the another cell, then again to the another cell. So it is very important, we cannot skip all these pressure forms, so we are discussing it. I hope you understand that. Now दूसरा है the diffusion pressure and the diffusion pressure deficit. डिफ्यूजन प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जैसे कि यू जस्ट रिकॉल द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के चलते प्रेशर बढ़ाना और पानी को रोकना, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और डिफ्यूजन प्रेशर में क्या होता है, डिफ्यूजन जो पानी का जो है वो प्रेशर जो है पानी को मूव कराने का होता है। दो चीज है यहाँ पे, वन इज द डिफ्यूजन प्रेशर एंड वन इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दो चीज है यहाँ पे। डिफिसिट में क्या होगा, जो पानी जो आराम से जो एक दूसरे पे आराम से मूव होना था, हम लोग शुगर या कोई भी सॉल्यूट को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के पानी के मूवमेंट को रोक देता है कि नहीं, दैट इज व्हाट द ऑस्मोटिक प्रेशर डज। बट हियर अगेन द सेम थिंग, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में क्या करेंगे, शुगर ऐड करके या कोई भी सॉल्यूट ऐड करके पानी के मूवमेंट को रोक देता है, दैट इज व्हाट द अगेन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब। तो प्योर वाटर हम लोग ले लेते हैं, प्योर वाटर को लेता है तो प्योर वाटर में तो कुछ भी सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो वाटर जहाज पे भी मूव करना चाहेंगे दे विल मूव, पूरा फ्रीडम। ओके, इसको भी हम लोग कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल भी कहेंगे, हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो
इसमें हम शुगर ऐड कर रहा है तो वाटर का जो मूवमेंट जो है वो स्लोइंग डाउन कर रहा है, मतलब वाटर मूवमेंट इज गेटिंग डेफिशिट, वो मूव अच्छे से नहीं हो पाता है. सो हम लोग कहते हैं कि ये DPD जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट व्हाट वी आर कॉलिंग फॉर द प्योर वाटर इट इज जीरो, मतलब वो उसमें रोकने वाला कोई है नहीं, तो वाटर इज मूविंग फ्रीली, सो द वाटर को रोकने वाले प्रेशर जो है ही नहीं, दैट मीन्स द DPD ऑफ प्योर वाटर इज जीरो. द हियर आई एम गिविंग इट इन द टर्जिड सेल. ओके, टर्जिड सेल मतलब फुल ऑफ वाटर, नो कॉन्सेंट्रेशन. तो इसमें क्या होता है, DPD जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, OP एंड OP माइनस TP. ये फॉर्मूला जो है वो सब ध्यान दो इसको, ठीक है. इन द क्वेश्चंस दे रियली इन एग्जाम दे कम्स अप. OP माइनस TP मतलब टर्गर प्रेशर. ओके, इसमें जो है OP ऑस्मोटिक प्रेशर तो है ही, इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अगर टर्जिड होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ही नहीं, है कि नहीं. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन के चलते, लेकिन द वाटर इज सो मच इनसाइड द सेल, तो टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है. तो इसमें जो ये क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जीरो है. तो इसमें जो DPD जो है प्योर वाटर जब टर्जिड सेल में DPD इज इक्वल टू जीरो. बट फ्लैसिड मतलब इसमें शुगर ऐड करके, सोल्यूट ऐड करके पानी को रोकना और सेल को थोड़ा सिकुड़ने के स्टेज जो है, इसमें क्या होगा, टर्गर प्रेशर होगा ही नहीं उसमें, क्योंकि पानी है ही नहीं है. तो पानी नहीं है तो टर्गर प्रेशर जो है वो जीरो है. टर्गर प्रेशर जीरो है, तब इन द फ्लैसिड सेल दिस DPD is equal to OP, that is the osmotic pressure, and this is same for the plasmolyzed cell also. In the flaccid cell and in the plasmolyzed cell DPD is equal to zero. Understand? Sorry, DPD is equal to OP, that is the osmotic pressure. मतलब इतना concentration बढ़ गया है तो वो osmotic pressure को ही उसको नाप लेते हैं. That's why DPD is equal to osmotic pressure in case of flaccid cell and plasmolyzed cell. Now the next water potential, अभी मैंने कहा था water potential, ये फिर osmosis से क्या ये है, थोड़ा ऐसा नहीं है, वो movement of water ही है. Osmotic potential मतलब एक water movement मतलब क्या हुआ, osmosis means the process of moving of water from higher concentration to the lower concentration. Okay, और ये water potential क्या हुआ, water potential मतलब शक्ति, ability of the water to move. Understand now? वही ऑस्मोसिस का ही एक पार्ट है, लेकिन इन द पोटेंशियल फॉर्म में हम लोग एक्सप्लेन करता है. देन दिस इज नथिंग, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, एक शक्ति है इसमें. द वाटर्स एबिलिटी, द पोटेंशियल ऑफ द वाटर टू मूव, दैट इज व्हाट द वाटर पोटेंशियल मीन्स. और ऑस्मोसिस मतलब द प्रोसेस, ऑस्मोसिस का मतलब प्रोसेस, वाटर पोटेंशियल का मतलब वाटर के एबिलिटी टू मूव. ओके, सो ये दोनों लिंक है बट एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वे. सो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हियर द फ्री एनर्जी पोटेंशियल ऑफ वाटर टू मूव. कोई रोक टोक करने वाला नहीं, जो वाटर के एबिलिटी टू मूव, दैट इज व्हाट वाटर पोटेंशियल इज. और इसको जो है हम लोग इस तरह से इक्वेशन देते हैं, psi W, water potential is denoted by the psi W. ये psi W is equal to psi S. Here the psi S is nothing. Here I have given the solute potential. I'll explain now. Wait. Then the psi M is the matrix potential. Psi P, that is the pressure potential or the target pressure. ओके, सो वाटर पोटेंशियल जो है हम लोग सॉलिड पोटेंशियल इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल प्लस टारगेट प्रेशर का से नापते हैं. ओके, सो नाउ दिस टारगेट प्रेशर इज psi p एंड सॉलिड पोटेंशियल मतलब हियर सॉलिड पोटेंशियल जो है वो एबिलिटी ऑफ द, एक चीज दूसरे तरीके एक समझो, ऑस्मोटिक सॉलिड पोटेंशियल जो है ना, इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी हम लोग कहते हैं. वो क्यों? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर. आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस पॉइंट इज वेरी कंफ्यूजिंग. ओके, एंड द स्टूडेंट्स रियली मेक अ मिस्टेक इन दिस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर में
the pressure created by the solute and not letting the water to move. But ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल में हम लोग जैसे कि मान लो कि 10 आदमी आए, 10 आदमी एक आदमी को पकड़ रहा है, and let's take this one person as a water and let's take this 10 people as a sugar. तो ये शुगर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जो एक आदमी को इस तरह पकड़ रहा है, okay, then not letting the water to move, and another one will this this water will try to pull itself to move it, okay. ये शुगर कॉन्सेंट्रेशन का पकड़ना, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये एक वाटर, एक आदमी को अपने आप को छुड़ाने का जो पोटेंशियल है, दैट इज दी osmotic potential. Okay, this is the difference between the osmotic pressure and the osmotic potential. तो ये सेम वही, ये solid potential and the metric potential जो है mostly in the vacuolated cells, जिस cells में vacuole presence है, almost in all the हाई प्लांट जो वो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, तो ये दोनों निग्लिजिबल है। तो इसीलिए हम लोग सीधा इसको जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर पे नापते हैं। तो इन टर्जिड सेल में ये वाटर पोटेंशियल जो है जैसे सेम dPd इज इक्वल टू 0 इन द प्योर वाटर, लाइक दैट वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 0। बस डिफरेंस है dPd और वाटर पोटेंशियल का जो है वो ऑपोजिट साइन में रहते हैं, अदरवाइज रेस इज same. Like that, here in the flaccid cell, osmotic water potential is equal to this solute potential, just like that. So dPd is equal to OP, like that here. और यही same for the plasmolyzed cell also. In the plasmolyzed cells also, the water potential is equal to the solute potential, because उसमें turgor pressure है ही नहीं, turgor pressure 0 रहता है। Okay, so the water potential, because of this difference in these potential difference, because of the difference in the pressure gradient, there the water movement will continue from the soil to the plant system and then again lost to the atmosphere. Okay, up to this I'll be taking, and the next Wednesday again I'll be taking you the rest of the parts. Okay, so till this for today,